Great. Okay. Now in Rutherford model, there are two things which we have to do, right? Listen, number of alpha rays which are getting scattered versus its scattering angle. Do you know what? If suppose I have this is a nucleus, right? This is a nucleus of gold foil. It is gold particle nucleus. Now understand that suppose an alpha particle is undergoing a deflection of 60 degrees. Right. The number of alpha particles undergoing deflection of 60 degrees. Let's say it is 300. The question they are asking that how many alpha particle approximately will have angle of scattering 120 degrees. So I want to calculate the number of alpha particles which are getting scattered at 120 degree angle. So this is a question asked from me. That is the number of alpha particles undergoing scattering at 60 degrees. The number of particles undergoing scattering at what that 120 degree. What is the relationship between them? Right. So how many particles will be there? Now understand that the number of alpha particles which are scattered is inversely proportional to 1 raised to power sin raised to power 4 theta by 2, where theta is angle of scattering. Everyone write this formula. Everyone write this formula. And mute yourself. It is like creating disturbance here. The board is visible, right? There is no issue in the board clarity, correct? Hello. Yes, sir. Yeah, just right on. Sir, can you repeat that formula? What you have written after sin raised to 4 in bracket? Theta by 2. Sin raised to power 4 theta by 2. That Thank is you, sir. sin raised to power 4 theta by 2. Okay, you have written. सर वो क्या है? That is theta is angle of. क्या बेटा? Theta is angle of. Theta is angle of scattering. Theta is angle of scattering. I'll just people it right. Angle of scattering. Okay, समझ लो क्या चल क्या रहा है. तो एक काम करते हैं. Shall I rub this now? इसको Yes, हटाओ. sir. Yes, Very sir. good. अच्छा अभी सुन लो करना कैसे? सर नो सर. हाँ बेटा 2 मिनट. सर मेरा लैग हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आया. रुक जा बेटा, सब समझाता. ये मैंने बोला कि सपोज करो ये ना
एक मिनट हाँ। मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने कहा कि सपोज करो नंबर ऑफ पार्टिकल जो 60 डिग्री पे क्या कहते हैं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री पे, वो 300 है। नंबर ऑफ पार्टिकल 100 या ड्रॉबैक्स आर ना ना वन ड्रॉबैक इज पेंडिंग। 120 डिग्री पे जाएगा तो कितने अल्फा पार्टिकल्स होंगे इधर? तो दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच आर स्कैटरिंग राइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin raised to power 4 theta by 2 where theta is the angle of scattering. Getting it? अभी सुनो, कितने हैं? 300 राइट। तो 300 अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं कितने एंगल पे? 30। तो sin raised to power 4 30। Number of particles n millimeter, it is undergoing scattering at the angle of sin raised to power 460। सर 60 डिग्री ना? 60 डिग्री लिखा है सर। बेटा थीटा बाय 2 60 by 2 30। तो अगर थीटा 60 हुआ तो थीटा बाय 2 कितना हो गया? 30 नो? यस सर, यस सर। हाँ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा sin 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 हो जाएगा तुम्हारा 300 is directly proportional to 2 raised to power 4। और यहाँ पे हो जाएगा n is directly proportional to what is sin raised to power sin 60 3/2। 2 2 का whole root 3/2 2 raised to power 4 by 3 by 3 raised to power root 3 by 4 is 3 by root 2 3 root sorry 3 power 2 no divide yes sir, यस सर। yes sir, yes को डिवाइड कर दूं तो अगर दोनों को डिवाइड किया तो दिस इज एक्सप्रेशन 1 दिस इज एक्सप्रेशन 2 just 1 divided by 2 so I'll be getting n by 300 2 power 4 गया बचा क्या 1 by 9 तो n comes out to be 300 by 9 approximately अगर मैं इसको 900 बोल लूं पीसफुल हो जाएगा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी बहुत 900 by 9 कितना आ जाएगा 100 अगर 900 अल्फा पार्टिकल 60 डिग्री पे डिफ्लेक्ट करे ना तो अप्रोक्सीमेटली 100 अल्फा पार्टिकल विल अंडरगो डिफ्लेक्शन एट 120 डिग्री। बात समझ में आई? हाँ सर। चलो उसको कॉपी करो जल्दी जल्दी मतलब जल्दी। सर अगर थीटा 0 हो गया तो थीटा 0 हो गया तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हिच इज अंडरगोइंग डिफ्लेक्शन will be like infinite, no? That means 99.99% of alpha particles are anyways passing through it, so it's close to infinity only, right? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंफिनिटी का क्या मतलब होगा? भैया इसका मतलब होगा कि the most of the alpha ray chunks are passing through the foil undeflected। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा तूने ऐसे क्वेश्चन पूछे, अब एक काम करो जल्दी करो। क्या सर? हाँ हो गया। What is written wait sir, wait sir, wait ए हाँ डिनोमिनेटर में 2 raised to power 4 ही लिखा है। डिनोमिनेटर नहीं बेटा वो सेकंड इक्वेशन लिखा है। मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं लगाया।
Okay. सर आपने इनवर्स को कैसे निकाला? क्या किया? हेलो. हेलो सर, आपने हाँ ना. इनवर्स प्रोपोर्शन Sin raised to power इक्वल टू 4 में कैसे theta by लाया? 2. Sin raised to power 4 theta by 2. Inversely proportional लिखा है. हाँ. हाँ, inversely proportional लिखा है. सर Yes. 60 डिग्री पे 900 अल्फा रेस जा रहा है, हाँ हाँ. तो 120 में 100 जाएंगे, बट पहले उसकी वैल्यू 300 थी 60 डिग्री पर. हाँ. तो मैंने चेंज किया ना उसको. सॉरी. मैंने चेंज किया ना डेटा ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो. ओके, हाँ. ठीक है सर. हाँ. सर ऐसे और क्वेश्चंस दो ना. दे रहा हूँ ना बेटा. हाँ. सर प्रोपोर्शनैलिटी साइन चेंज निकल जाता है क्या सर इक्वेशन करने पर? Just give me a minute. I'll just give you. हाँ. Yeah. Take look. This is a nucleus, right? Let's say alpha ray are undergoing scattering at 60 degree, and let's say approximately at 90 degree. Right. Now, listen. If the number of alpha particles are undergoing scattering here is x, number of alpha particles undergoing scattering here is y. What is the ratio of x and y? X and y ratio I want. Do it fast. Just come up. The input. 8 done. 16:9. One student is saying 16:9. What about other people? Pass. Sir, 16:1. For that. Sixteen 4:1. Okay. 16:1. 4:1. Okay. We'll find it out. 4:1. 4:1. Okay, we'll check it out, right? X. Shall I say that x is inversely proportional to sin raised to power 4 theta by 2 is 30 degree? Okay. And y is proportional to 1 raised to power sin raised to power 445 degree. Agreed? Say yes. Yes, sir. So x by y comes out to be sin raised to power 4 45 degree by sin raised to power 4 30 degree.
Sin raised to power 4 is 1 by root 2. Yes, sir. Sin raised to power 4, 45 degree. 45 degree, sin 45 degree, 1 by root 2, correct? Yes, sir. So 1 by root 2 whole 4. Sin that is 1 by 2. 1 by 2 whole 4 comes out to be 2 raised to power 4 by root 2 raised to power 2. 2 raised to power 4, 2 raised to power square, 2 raised to power 2. That's power. So the ratio comes out to be 4:1. Great. The ratio comes out to be 4:1. So I guess you understood it, right? आगे चले? Yes, sir. Great. Now write down calculation of nucleus of radius of nucleus. Calculation of radius of nucleus. Right. सर अगर थीटा बाई 2 का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो मैंने क्या कहा था? अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, करेक्ट? That means very few alpha particle have a tendency to undergo deflection at that point. So वो logical meaning निकलेगा उसका. Getting it? यस सर Yeah. अच्छा अभी हटा दूं मैं इसको. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Will come out to be that what minus infinity, right? Minus infinity मतलब almost 0. Okay. Okay. Now. Calculation of radius of nucleus. Calculation of radius of nucleus. ओए एक बात बताओ. मैं अल्फा पार्टिकल, बट आई एम अल्फा पार्टिकल, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर से भाग के आ रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? मुझे ना पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बताओ जल्दी. stored energy upon charge The energy possessed by an object because of its position. अच्छा 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 एक बात बताओ. साइंस स्टूडेंट हो, राइट? Sir, sir. बचपन से तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हो. सपोज करो एक पांचवी क्लास का लड़का तुम्हारे पास आता है, ठीक है, और पूछता है भैया और दीदी मुझे ना पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बताओ, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? और तुम लोग वो किसी भी डेफिनेशन बताते हो. The energy possessed by a body due to virtue of its position is known as potential energy. तो उसको क्या समझ में आएगा? तुमको खुद को समझ में आएगा तुम क्या बोल रहे हो? अगर वो पांचवी क्लास का लड़का तुम्हारा भाई या बहन हो ना, लात मार के भाग जाएगा. गेटिंग अ पॉइंट? तुमको कुछ आता वाता है नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सर किसी बॉडी जो रेस्ट पर है उसके शेप और साइज की वजह से उसके पास जो एनर्जी रहती है वो. क्या 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 क्या, क्या? दोबारा. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसके शेप और साइज की वजह से उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड रहती है, वो पोटेंशियल क्या? एनर्जी रहती है.
अच्छा अच्छा अच्छा, वन सेकेंड. तो ऑब्वियसली your mass, suppose your mass and my mass is same, your height and my height is not same, so shape of the body is not same. We are standing here, both of us, we are standing here. Someone has applied brain. They have said the energy which is possessed by a body which is directed by its mass is known as potential graph. Nothing like that. थोड़ा और कोशिश करो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, थोड़ा और 2 मिनट और सोचो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या. मुझे ना सिंपल वर्ड्स में बता दो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या. Energy stored by a stationary object. अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्टेशनरी बॉडी, करेक्ट. अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कुछ स्टोर्ड एनर्जी और मैंने सुबह खाना खाया था, वो जो एनर्जी मेरे अंदर स्टोर्ड है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलूं. सर अगर हम ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करेंगे तो वो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. अच्छा एक मिनट. सर अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो फिर उसकी जो एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है. अच्छा सिर्फ हाइट पे. सर इलास्टिक सकती है. एक मिनट सोचना थोड़ा सा. अगर किसी क्या है मतलब तुमको रियलाइज हो रहा है, तुम मुझे पोटेंशियल एनर्जी समझा पा रहे हो. Your voice is cracking. बेटा your voice is पोटेंशियल एनर्जी है. अरे बेटा आवाज क्रैक हो रही है. सो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के मास और हाइट पे डिपेंड करती है. अच्छा टेल मी, देयर आर ना वेरियस टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सुनो there are various types of potential energy. ठीक है. सपोज करो ये रबर बैंड है, राइट. रबर बैंड, इसको अगर मैं खींच रहा हूँ ना, जो है सुनो भी, हाइट मास कर रहे हो. चुप, सुनो मेरी बात. ये रबर बैंड है, राइट. नाउ कितना है तुम्हारे अंदर, सुनोगे नहीं, सिर्फ हाइट कर रहे हो. सुनो, ये रबर बैंड है, राइट. इस रबर बैंड में आई एम अप्लाइंग सम फोर्स. ठीक है. नाउ सुनो, जब मैंने इसको फोर्स लगाया ना तो इसके अंदर ना एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट. रुक जाओ, सुनो, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो गई, आओ, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट. उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ज्यादा फोर्स लग गया उस पर, मजाक. ठीक है. Let's bring it back. ये रहा. अब जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, राइट, तो इट अंडरगो स्ट्रेचिंग. Now, if it is undergoing stretching, obviously it will gain some energy, and that energy is known as potential energy. Now, this is elastic potential energy. I am standing over here. The earth is applying some energy over me, and it is gravitation potential energy. Whenever there are some positive or negative charges, there exists some electrostatic potential energy. क्या चल रहा है तुम्हारा, क्यों लड़ रहे हो क्लास की? चीज पूछनी है. एक मिनट रुको, पहले डेफिनेशन सुन लो. आवाज आ रही है? यस सर. एक बार चीज बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना. The energy possessed by a body due to the force of attraction or repulsion is known as potential energy. अर्थ मेरे को अट्रैक्ट कर रही है, उसकी वजह से जो एनर्जी मेरे अंदर है वो पोटेंशियल एनर्जी है.
एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने रबर बैंड को खींचा तो रबर बैंड के आई लेट यू नो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मतलब द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्ड्स व्हिच कम्स ओवर देयर। Where I was, I attracted this particular thing, but that I stretched the rubber band, right? So rubber band stretch करने के बाद the tiny molecules of rubber band want to retrace them back, so they're attracting each other. Elastic potential energy. So wherever there is a force of attraction or repulsion, due to which I am getting some amount of energy, that is known as potential energy. Point is clear? Due to the force of attraction or due to the force of repulsion, there exists energy, and that is known as potential energy. Have I made my point clear? Yes or no? सर एक डाउट है सर, हमें 9th में फॉर्मूला बताया था वो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हाँ सर, तो अगर हाइट 0 है ग्रेविटेशन वाला था, ग्रेविटेशन। हाँ एक्चुअली वो नहीं होता है। एक बच्चा है K013, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? K013, व्हाट्स योर नेम? Niranjan. हाँ Niranjan. Niranjan, I'm so proud of you. Yeah. So potential energy formula, just tell me, तुमको एक फॉर्मूला बताया था mgh, that is relative to the what surface ground, कि तुम्हारे अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, that is relative to the ground, right? बात समझ में आ रही है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, समझना इस ये आर्कर है, ठीक है, मैं ना इसको छोड़ रहा हूं, क्या हुआ? गिर गया सर। हाँ अरे भाई क्या बात गिर गया, राइट? फ्री फॉल, राइट? अच्छा एक बात बताओ, ये खुद ब खुद हुआ कि मैंने करवाया? मतलब मैं बार बार इसको नीचे लेके जा रहा हूँ या मैंने छोड़ दिया तो खुद ब खुद नीचे गया? सर खुद नीचे गया। जो सुनो इतनी ना बड़ी बड़ी बातें मत करो। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी मेरे को तो समझ में नहीं आता, ठीक है? इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, छोटी करते हैं ना। नितिन शेट्टी, अभी थोड़ा समझना इस चीज को। जब मैंने मार्कर छोड़ा तो मार्कर ना ऊपर से खुद ब खुद नीचे गिर रहा था। एग्रीड? यस सर। हाँ तो मतलब जो देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, द प्रोसेसेस व्हिच अकर इन द यूनिवर्स बाय इट्स ओन, the processes which will occur in universe by its own will always tends to attain stability. जो भी प्रोसेस खुद ब खुद इस यूनिवर्स में होंगे वो हमेशा होंगे टू अटेन स्टेबिलिटी, हमेशा स्टेबल होना चाहेंगे। तो अगर मैंने मार्कर यहाँ से नीचे छोड़ा ना, वो अपने आप नीचे गिर रहा है। इट इज टेंडिंग टू अटेन स्टेबिलिटी बाय इट्स ओन। बात समझ में आ रही है? सर तो स्टेबिलिटी मतलब कम एनर्जी होता है क्या? देखो यार, यूनिवर्स के अंदर कोई भी प्रोसेस होगा ना, कोई भी प्रोसेस होगा वो हमेशा स्टेबिलिटी अटेन करेगा। जब भी दो ही प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल पानी ऊपर से नीचे गिरता है। अबे जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वाटर विल जस्ट फॉल डाउन, राइट, फ्रॉम द माउंटेन्स टू द, ऊपर तो जा नहीं रहा। अगर तुमने क्या कहते हैं बेल्ट से छलांग लगाई तो तुम सुपरमैन तो बन नहीं रहे हो, नीचे ही गिर रहे हो ना। जब तुम नीचे गिर रहे हो ना टुवर्ड्स द अर्थ, यू आर गेटिंग स्टेबल। जब भी मार्कर नीचे गिर रहा है ना तो मार्कर इज गेटिंग स्टेबल, गेटिंग अ पॉइंट। जब भी पानी माउंटेन से नीचे आ रहा है एंड देन इट इज हैपनिंग बाय इट्स ओन, दैट इज स्टेबल। एवरी प्रोसेस इन दिस यूनिवर्स विल अकर इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, तुम आराम से बैठे हुए हो, ठीक है,
एंड मैंने सडनली रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तुम स्टेबल हो गए कि अनस्टेबल हो गए? अनस्टेबल अनस्टेबल स्टेबल। पाँच में लगूंगा। हाँ अनस्टेबल हो गए। तो सुनो सुनो सुनो, मतलब अगर मैंने तुम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी दी, तो तुम जब रूम टेम्परेचर बढ़ाया तो तुमको एनर्जी दी ना? हाँ सर। हाँ, तो अगर रूम टेम्परेचर बढ़ाया, तुमको एनर्जी दी, तुमने एनर्जी गेन करी, एनर्जी गेन करने की वजह से तुम्हारे पास अनस्टेबिलिटी आई। एग्री? मतलब गेन ऑफ एनर्जी इज अनस्टेबिलिटी, लॉस ऑफ एनर्जी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। ऐसा पर सपोज ऊपर से नीचे गिर रहा था, जब मार्कर पेन ऊपर से नीचे गिर रहा था, वो खुद ब खुद गिर रहा था, और गिरने के वक्त वो अपना एनर्जी लूज कर रहा था, तभी स्टेबल होगा। सर पर लॉस ऑफ एनर्जी भी अनस्टेबिलिटी हो सकता है ना? क्या? लॉस ऑफ एनर्जी भी अनस्टेबिलिटी हो सकता है ना? लॉस ऑफ एनर्जी भी अनस्टेबिलिटी हो सकता है? नहीं, कैसे बताओ जरा। अगर रूम का टेम्परेचर कम कर दिया तो? As a body you will become stable, as a human being you will die. As a body, as a physical body you become stable because your molecules are losing kinetic energy, and loss of kinetic energy will become more stability. You are losing energy. Losing energy is tending to stability only. Okay sir. Yeah. So what about the ions, like anions and cations? हाँ, क्या anion, क्या cation? They will be losing energy, right? When they'll be losing energy? When they forms cation. When they attract each other, they lose energy. Agreed? Yeah. Yeah, when they attract each other, they lose energy. That is why salt formation takes place. Agreed. They are in salt, they will attract each other. No, if they attract each other, they become stable. Okay. Now listen. से चीज समझ में नहीं आई सर, अगर आपने रूम का टेम्परेचर कम किया तो वो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? अगर मैंने रूम का टेम्परेचर कम किया, स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? भैया तुम अपना एनर्जी लूज करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुम लोग अपना एनर्जी लूज करोगे तो एनर्जी लॉस की वजह से तुम्हारा जो बॉडी होगा वो स्टेबल होगा। अच्छा। या कोई भी दूसरा पार्टिकल स्टेबिलिटी अटेन करेगा। तो फिर वो एनर्जी कहाँ पे जाएगी? एटमॉस्फेयर में? हाँ, you are losing that energy, right? Okay. You go into the atmosphere. Okay. Yeah. Now, अब सुनो. So when a star is near to supernova due to loss of energy in star. Oh God. But as Marcus was into the, it is also gaining energy. But finally it will come to rest. When it is coming to rest, it is losing all the energy, right? So the process is tending towards the loss of energy only. Now listen everyone, very important thing. आज के बाद ये चीज याद रखना. How to define stability? The stability will be the overall energy content of a system. If I have large amount of energy, I'll be unstable. If I have less amount of energy, I'll be stable. That is the definition of stability for me, firstly, right now, in terms of energy. Sir, एक doubt है. Getting it? अगर मेरे पास energy बहुत ज़्यादा है, तो I'll be unstable. If I have less energy, I'll be stable. Now that is not a main issue. The main issue is अभी थोड़ा ध्यान दो. हाँ, potential energy, electrostatic potential energy का सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल है Q1, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2.
जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसका सपोज दोनों चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, that will be equal to q1 q2 by 4 pi epsilon naught r. Getting it? Where q1 and q2 are charges in coulomb. I have charges in coulomb. Getting it? Q1 and Q2 are charges in coulomb. 1 by 4 pi epsilon naught is a constant, which is equal to 9 into 10 raised to power 9. And R is distance in meter. Getting it? So this is the formula of potential energy between two charged particles. For a time being, just gram it. For a time being, just gram it. सर तो वो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? फिर से बेटा आर स्क्वायर फोर्स के लिए था, मैंने एनर्जी बोला है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टैंड? So I have 1/4 pi epsilon naught will be 9 into 10 to the power 9. Q1, Q2 are charged with coulomb, and R is distance in meter. Getting a point? So whenever Q1 and Q2 are separated by some distance, the amount of potential energy this system will have will be this. This is the formula. And R square force के लिए आता है बेटा, potential energy की नहीं आता। I guess you understood that point. That is the definition. There is a formula of potential energy. Shall we move ahead? सर ई मतलब हाँ? ई मतलब सर वो पाई के बाद क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है इन ऑफ अ मीडियम। छोड़ दो उसको, वो मीडियम का प्रॉपर्टी है। एयर के अंदर, वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी बोलते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं, कितनी परमिएबिलिटी है दो चार्ज पार्टिकल की अट्रैक्ट करने की, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। वो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, मीडियम चेंज करने पे एप्सिलॉन नॉट चेंज होता है, दैट्स इट। पर अभी इतना याद रखो, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट। बट सर आपने ही बोला अभी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मीडियम के साथ चेंज होता है। दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज नॉट, एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपने ही बोला था अभी अभी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मीडियम के साथ चेंज होता है, तो अगर मैं मीडियम चेंज कर दूंगा तो ये फॉर्मूला गलत हो जाना चाहिए। नहीं, उसके बाद क्या होता है, अगर मीडियम चेंज करना है ना तो विल बी लाइक दिस, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R into K. Now epsilon naught की जगह epsilon आ जाएगा, and that is potential energy, where epsilon is equal to K times epsilon naught, where K dielectric constant होगा। K क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। तो फॉर्मूला गलत नहीं होगा, बस मुझे K की वैल्यू डालनी पड़ेगी साथ में। और वो K की वैल्यू कौन देगा? मीडियम देगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो अभी सुनो, हटाओ इसको, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, हटाओ इसको। यस सर। क्या? तो अब तक ना तुम लोग ये समझ लिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एवरी टाइम सिस्टम विल गेन stability, the view good process. Now understand one thing. Suppose करो यहाँ पे ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, गेटिंग इट, यहाँ पे न्यूक्लियस है और मैं एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मैं एक अल्फा पार्टिकल हूँ और मैं बहुत पीछे से आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो I have a nucleus. Z is the number of proton inside this nucleus. So Z is number of atomic number. So I have Z times proton. Getting it? Getting it? Now understand that initially
at time t is equal to 0, मतलब जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया टाइम t is equal to 0, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल था, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल था which is He2 plus न्यूक्लियस. Now हुआ क्या, initially no, the distance between this alpha particle and this nucleus is infinity. अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल हूं और वहां पे न्यूक्लियस है और मेरे और न्यूक्लियस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो क्या न्यूक्लियस मुझे रिपेल करेगा क्या? नहीं सर. अच्छा, क्या वो मुझे अट्रैक्ट करेगा? नहीं. शायद सर. नहीं ना तो वो अट्रैक्ट कर पाएगा ना तो रिपेल कर पाएगा. तो ना तो मेरे पास अट्रैक्शन हो रहा है ना तो रिपल्शन हो रहा है. जब डिस्टेंस इंफिनिटी है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी हुई कितनी? जब अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है, Zero. Approximately 0. अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं, एग्जैक्टली 0, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? Infinite. हाँ, so no attraction, no repulsion. What will happen? I have an alpha particle here. Initially, this is a point A where the force of attraction or repulsion is 0, potential energy is 0. अब मैंने क्या किया, इसको ना काइनेटिक एनर्जी दी. तो वो अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है. If alpha particle is moving at a very fast speed towards the nucleus, so obviously अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल हूँ तो समझना इस चीज को, मेरे पास लेट्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है. कितनी है? कितनी है? 10 जूल. यहाँ पे खड़ा कर दिया मैंने अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस, तो मैंने इधर यहाँ पे न्यूक्लियस को खड़ा कर दिया. मैं जैसे ही पहले इंफिनिटी डिस्टेंस था तो मैं ना तो रिपेल कर रहा था ना तो अट्रैक्ट कर रहा था, मेरे पास नेट एनर्जी 0 था. अब जब मैं इसके पास आ रहा हूँ, when I'm coming closer to it, right? Now what will happen? This nucleus, what will do with me? Start repulsion. ये मेरे को रिपेल करेगा. अगर ये मेरे को रिपेल करेगा तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? अगर मेरे को धक्का स्लो होगी, मेरा कम हो जाएगी. डिक्रीज होएगी, कम हो जाएगी. और जब ये मुझे रिपेल कर रहा है तो रिपल्शन की वजह से तो मैं एनर्जी गेन करूंगा कि लूज करूंगा? गेन क्योंकि पीछे जा रहा है, रिपेल हो रहा है. गेन क्योंकि रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी होती है, अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी होती है. अनस्टेबिलिटी मतलब गेन ऑफ एनर्जी. तो मैं एनर्जी गेन कर रहा हूँ, राइट? तो इनिशियली 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल. जैसे मैं पास आ रहा हूँ तो ये भाई साहब मुझे रिपेल कर रहे हैं, मेरे को रिपल्शन मिल रहा है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है. तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी होगी 8. कितनी होगी? कितनी हो गई? 8. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? अगर इसने 2 काइनेटिक एनर्जी कम करी मेरी, तो कितने एनर्जी से मेरे को रिपेल कर रहा होगा वो? 2 एनर्जी कंजर्व. सुना है? हाँ, 10 जूल था, 10 जूल में से 8 जूल रह गया, 2 जूल पोटेंशियल. एग्री? यस सर. और पास आया और रिपेल किया, राइट? और एनर्जी कितनी हुई? 6. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची? 4. आते इतना पास आ गया तो बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है. क्या देंगे? इतना पास आ गया मैं कि मुझे बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है. अगर वो बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है, मैं रुक गया, मतलब भागता हुआ आया और मैं सडनली रुक गया. क्यों रुक गया? क्योंकि इस भाई साहब ने मुझे पूरा रिपेल किया. जब मैं रुक गया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 0. पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल्स. अब जब मैं रुक गया ना तो मुझे रिपेल कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ. तो फिर मैं पीछे जाऊँ, जैसे पीछे गया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. गेन हो रही है. Too proud of you. सुनो, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, इसके ऊपर बम्बार्ड किया, तो अचानक एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे इसने अपना पाथवे रिट्रेस किया.
लेट्स से जहां पे पाथ में रिप्लेस किया ना वो पॉइंट बी है, राइट? तो अंडरस्टैंड दैट जहां पे अल्फा पार्टिकल अपना पाथ में रिप्लेस करेगा ना वहां पे ये रुक जाएगा। तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी होगा इस पॉइंट पे रुकने के बाद इसमें कन्वर्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट पे जितना भी डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच में, इसको मैं डिस्टेंस d मान लेता हूँ। दैट डिस्टेंस d इज डिस्टेंस of maximum approach, the distance of maximum approach, getting it? And listen, shall I say that अगर radius of nucleus rn है तो मैं कह सकता हूँ ना the distance of maximum approach is approximately is greater than or equal to radius of nucleus। जो डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच होगा वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। एग्रीड? यस सर। तो रुदरफोर्ड अंकल ने पता है क्या बोला? रुदरफोर्ड अंकल बोले कि दिस डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। So that is how he calculated the radius of nucleus. Have I made my point clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now listen to it. At point A, shall I say that kinetic energy plus potential energy of alpha particle at point A should be equal to kinetic energy plus potential energy of alpha particle at point B. Tell me what is the potential energy at point A? Zero. It was 0. What is the kinetic energy of B at point kinetic energy of alpha particle at point B? Zero. Agreed? Yes, sir. Sir, agreed. What is kinetic energy? Shall I say that half into mass of alpha particle into velocity of alpha particle whole square at point A should be equal to n. Potential energy का formula क्या है? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught. Particle के बीच में empty है। Q1 Q2 by epsilon Q1 naught. Q2 by 4 pi epsilon naught. चार्ज कितना है हीलियम के पास? 2 plus. 2 plus. हाँ, अच्छा चार्ज कितना है गोल्ड न्यूक्लियस के पास? What is the atomic number of gold? 79. 79. What is the atomic number of gold? 79. कितने प्रोटॉन है? 79 प्रोटॉन, करेक्ट? तो is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught D. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारे दिमाग बहुत है, पता है, बस यूटिलाइज नहीं करते हो। अगर ऐसे मास कितना है अल्फा पार्टिकल का अप्रोक्सीमेटली? 4 what? 4 AMU 4 AMU approximately. So एक ही है ना, तो approximately 4 into 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Agreed? Yes. Please कह दो हाँ. Please कह दो हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. मास हो जाएगा 4 into 1.66 into 10 to the power minus 27 into v square. वेलोसिटी दे रखी होगी, तुमको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इज इक्वल टू Q1 Q2. What is Q1? What is the charge on this alpha particle? 2 plus. 2 plus क्या? 2 times what? 79. अच्छा, 2 times electronic charge. हाँ 2e.
What is that? 2 times electronic charge. So everyone, what is that? 2 times? It is 1.6 into 10 to the power not minus 2 19. electrons. Yeah. 2 times electronic charge will be like 2 into 1.6 because not 2 electron, right? So 2 plus 8, that's 2 times electronic charge. Which formula, beta? This one. I'll come to that point. Just give me some time, right? Give me a minute about that. For that. Now Q1 I got 2 times electronic charge. What is Q2? Charge on nucleus. How many protons you said it has? 79. 79. So what's in it? 79. 79 what? 79 what? 79 electronic charge. Into? 1.6 into 10 to the power minus 9. Understood? Understood? So this is Yes, sir. Q1, Q2 divided by 4 pi epsilon naught. What was 1 by 4 pi epsilon naught? 9 into 9 10 into 10 raised to power 9. and it is D. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. So D comes out to be 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 90 into 79 into 1.6 into 10 raised to minus 19 whole square will become, it become 9 into 10 raised to power 9 divided by 2 will come over here multiplied with 2 divided by 4 into 1.6 into 10 raised to power 27 1.66 into v square. So I just brought it here, brought it there, brought that, bring that particular d here. I got this thing. I introduce the value of v. I'll get the distance approximately 10 to the power minus 15 meters. That is why Rutherford uncle told. That is why Rutherford uncle told that the radius of nucleus is the range of 10 to the minus 15 meters. So this is how he calculates the approximate radius of the nucleus. Have I made my point clear? Yes, sir. Yeah, cool. So proud of you. Now, someone was asking, can you explain the formula again? I'll just explain you the formula here. Just listen to it. Now, whenever alpha particles are infinite distance from the nucleus, the kind of attraction or the kind of repulsion. 1 second. So can you write the formula bigger? Which formula bigger, beta? Which सर formula? इनका क्या मतलब है? This one. Hey, the board is not that clear to you. सर n का क्या मतलब है? किसका? सर n. M का? n. N. Where is N? So d is greater than equal to Rn. Rn is radius of nucleus. अच्छा. Radius of nucleus. कितना है ना ये? The radius of तो अभी इसको हटाओ. Yes, sir. No, sir. Wait. What? सर उसने कैसे बोल दिया कि मतलब कोलाइड हुआ था ये न्यूक्लियस के साथ ये मतलब अल्फा पार्टिकल बॉम्ब बन जाता. सॉरी सर रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो जाता. कोलाइड नहीं हुआ था. बट सर फिर उसने तो 10 to the power minus 15 मीटर कैसे बोल दिया अगर वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेशन था. उस भाई साहब ने क्या किया था, ये लगाया था. तो जो डी निकाला उसने, क्या वो कोलिजन वाला है कि थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से? थोड़ा दूर तो है बट अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. हाँ तो अप्रोक्सीमेशन लगाया ना उसने. मैं भी तो ये कह रहा हूँ. अच्छा ठीक है सर. हाँ
हाँ, now listen. दोबारा सुन लो इसको. Initially, I have a point A and I have a point B. Right? पहले क्या हुआ? मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है at point A पे, मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी. Now understand that जब A पे था तो डिस्टेंस कितना था न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड और अल्फा पार्टिकल के बीच में? इंफिनिटी. तो जब डिस्टेंस इंफिनिटी था ना, तो ये गोल्ड का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को ना तो रिपेल कर सकता है ना तो अट्रैक्ट कर सकता है. तो ना तो रिपल्शन है ना तो अट्रैक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी A पे 0. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जब इसने यहाँ से शुरू किया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी. नाउ A आएगा न्यूक्लियस के पास, रिपेल करेगा. जैसे रिपेल करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट B पे आएगा कि रिपल्शन इतना हाई होगा कि वो रुक जाएगा. जब कोई भी अल्फा पार्टिकल बहुत तेजी से आ रहा था और यहाँ पे आके रुक गया, मतलब जितना भी काइनेटिक एनर्जी था सब रिपल्शन की वजह से रुक गया. जितना भी रिपल्शन की वजह से रुक गया, मतलब जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. नाउ अंडरस्टैंड दैट जब A से आया और B पे रिपेल किया तो जितना भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इतना यहाँ पे था, उतना ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा, बिकॉज़ टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी 0 था. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है बिकॉज़ रुक गया भाई साहब, और सिर्फ रिपेल कर रहा है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर किसका? अल्फा पार्टिकल का. तो हाफ इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होल स्क्वायर. हाफ इनटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल होल स्क्वायर. It should be equal to the electrostatic repulsion between them, and that electrostatic repulsion between them, that is potential energy formula is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught D. तो मैंने कहा था ये D है ना, D वो approximately greater than और equal to radius of nucleus आएगा. मैंने ये डाला इधर, ये सारी वैल्यूज डाली, and I'll get the answer. The value of D comes out to be 10⁻⁻15 मीटर. बात समझ में आई? सर आपने वो इज इक्वल टू लिखा है क्या? 1/2 m² इज इक्वल टू Q1 Q2 वो वाला? हाँ. अच्छा सर तो फिर अभी कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? पॉइंट बी की क्या? देखो जितना एनर्जी यहाँ था उतना ही एनर्जी यहाँ होगा. हाँ है ना? तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. अच्छा ओके. पोटेंशियल एनर्जी एट A should be equal to kinetic energy plus potential energy at B. ओके अभी समझे? हाँ सर. वेरी गुड. हाँ सर ये किसने निकाला था सर? या आपने क्या बताया था कि किसने निकाला था 10⁻⁻15 मीटर? दोबारा बोलो. ये 10⁻⁻15 मीटर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये किसने निकाला था? रुदरफोर्ड. सर उस टाइम उसको, बट उस टाइम पे तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसको कैसे पता था कि 79 पॉजिटिव चार्ज हो गया था? वो नहीं हुआ था, क्या नाम है इसका, न्यूट्रॉन. प्रोटॉन मिल गया था. हाँ अच्छा कैनाल रेस के बाद की बात है. अरे प्रोटॉन तो तब मिल गया था जब रे थॉमसन अंकल आए थे. हाँ सर ठीक है. न्यूट्रॉन सर सारे एटम्स का न्यूक्लियस का रेडियस डिफरेंट होता है ना? अरे वो तो सारे एटम के न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है? 10⁻⁻15 अप्रोक्सीमेटली उसी की रेंज में होता है. अच्छा ओके. सर v का वैल्यू क्या है? हाँ सर स्पीड उसका क्या है? स्पीड नहीं वेलोसिटी. इज्जत दो, बड़े हो गए हो. हाँ सर. हाँ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखी होगी, टेंशन मत लो, अलग अलग रहेगी. तो अप्रोक्सीमेट रेडियस आएगा अप्रोक्सीमेटली 1/100 ऑफ वो रहता है स्पीड ऑफ लाइट. हाँ सर अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी कम दी तो फिर वो जल्दी रुक जाएगा ना? क्या बेटा? अरे अगर अप्रोक्सीमेटली जो अल्फा पार्टिकल नेचुरली ओरिजिन कर रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली जो अल्फा पार्टिकल नेचुरली ओरिजिन कर रहा है ना, उसका जो स्पीड होता है ना, दैट इज 1/100 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. With sign J010.
अरे कौन सा साइन, किधर है तू? आफ्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन। आगे गोला लगाऊंगा ना तो एप्सिलॉन नॉट, समझा? हाँ, और सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 into 10⁹ इसका वैल्यू है ऐसे यूनिट में। हाँ ना गिर मत। ओके, तो मेरे लाल पीलो हरे नीलो कुछ इशू? ना जी ना। ओके, तो वही कट करें, खा पी लो कुछ। Okay, sir. Yeah, take care, bye. सर एक डाउट है हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मतलब कांस्टेंट रहेगा ना उसका सम? हाँ सर तो अगर मैं चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो फिर तो वायलेट हो जाएगा ना लॉ? क्यों? सर तू क्योंकि क्यों लेके जा रहा है? वो तो तूने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया ना उसको, तो खुद ब खुद जाए तो काम चलेगा ना वैसे। अच्छा, अगर सपोज करो, हाँ ऑब्वियसली, है ना, तो मतलब अपनी भी एनर्जी देगा, उसके बाद चाहेगा जो इनिशियल एनर्जी थे वो कंजर्व हो, ऐसा होगा क्या? ए डन। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Bye. बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Hi, sir. Bye, Sir, what was the Bye, one sir. given last time? I have given you that Champu wala question, remember? I made that thing. Hypothetical universe. I'll do one thing. Today I'll make one more assignment. I'll give it to sir and I will pass to you, right? Give me some time. It will take some time for me to make. ठीक है? Okay. चलो। सर जी कहाँ हो? अनूप सर। हाँ बोलिए सर, सुन आवाज आ रही है? Just take that host thing out ना। एक मिनट। हाँ बोलिए ना सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं कह रहा हूँ होस्ट वाला प्रॉपर्टी अपने पास ले लो ना। अच्छा ठीक है, हाँ, ताकि क्लास वाइंड अप कर ले। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। या बाय।